قرآن لڑکی کی شادی نیولے سے ہو گئی۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چودھری صاحب رہتے تھے۔ وہ نیک دل کے مالک تھے۔ اس نے اپنی دولت کا کبھی بھی غرور نہیں کیا تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں۔ اس نے کبھی بھی اپنی بیویوں میں فرق نہیں رکھا تھا۔ تینوں بیویوں میں سے کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ وہ چودھری اس وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، اس لیے میں تینوں بیویوں میں کوئی اولاد نہیں پیدا کر سکا۔ اگر میری اولاد نہ ہوئی تو میں دولت کا کیا کروں گا اور نہ ہی میری نسل آگے بڑھ سکے گی۔ ایک دن ساتھ والے گاؤں کے ایک کسان کام کے سلسلے میں چودھری صاحب کے پاس آیا۔ چودھری صاحب نے اپنا دکھ اس کو بتایا تو کسان نے چودھری صاحب کو ایک اللہ والے بزرگ کا بتایا، جو کہ بہت ہی بیماریوں کا علاج کرنے والا تھا، اور اولاد کے لیے تو ان کے نگر میں ایک بہت ہی بڑا پھل کا درخت ہے۔ وہ اللہ والے بزرگ اس پھل کو دم کر کے کھانے کے لیے دیتے ہیں، اور وہ پھل کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ ایک بار ادھر جائیں، مجھے پورا یقین ہے آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ یہ سن کر چودھری صاحب بہت خوش ہوا۔ چودھری صاحب دوسرے دن ہی اسی پیر کے پاس گیا۔ چودھری صاحب نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کھلا میدان ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اور کھلے میدان میں ایک کافی بڑا پھل کا درخت لگا ہوا ہے۔ چودھری صاحب نے جھونپڑی کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اللہ والے بزرگ ہاتھ میں تسبیح لیے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ وہ چودھری صاحب اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ والے بزرگ اس چودھری صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ چودھری صاحب نے اپنی پریشانی بتائی کہ کئی سال شادی ہونے کے بعد بھی میری تینوں بیویوں میں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ اللہ والے بزرگ درخت کے پاس آئے اور وہاں سے 3 پھل اتار کر چودھری صاحب کو دیے اور کہا کہ یہ تینوں پھل اپنی بیویوں کو ایک ایک کر کے کھلا دو۔ چودھری صاحب پھل لے کر بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی گھر آیا۔ اس نے تینوں بیویوں کو ایک ایک پھل کھانے کو دیا۔ 2 بیویوں نے پھل اسی وقت کھا لیا اور تیسری بیوی پھل کو رکھ کر کام میں مصروف ہو گئی۔ یہی دوران کہیں سے ایک نیولا آیا، اس پھل کو چاٹ کر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد تیسری بیوی نے وہی پھل اٹھا کر ایسے ہی کھا لیا۔ اللہ کے حکم سے وہ تینوں بیویاں 1 مہینے کے بعد حاملہ ہو گئی۔ 9 مہینے کا وقت ایسے ہی گزر گیا۔ 2 بیویوں کے ہاں ایک ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور تیسری بیوی کے ہاں ایک نویلا پیدا ہوا۔ یہ دیکھ کر چودھری صاحب بہت پریشان ہوا اور پھر اسی وقت اللہ والے کے پاس گیا۔ جا کر بتانے لگا، میری 2 بیویوں نے بہت ہی خوبصورت بیٹوں کو پیدا کیا ہے، مگر میری تیسری بیوی نے نیولے جیسا بیٹا پیدا کیا ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ سن کر اللہ والے بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی تو اس چودھری سے وہ کہنے لگا، تمہاری تیسری بیوی نے نیولے کا جھوٹا پھل کھایا ہے، اب تمہارا نیولے جیسا بیٹا اسی طرح چھوٹا رہے گا، مگر وہ بہت زیادہ ذہین ہوگا۔ یہ سن کر چودھری صاحب وہاں سے چلا گیا۔ جب لوگوں نے اسے بیٹے کو دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ کبھی بھی اس چھوٹے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا تھا، ہر کوئی اس کو نیولا بیٹا کہہ کر پکارتا۔ چودھری صاحب کا بڑا بیٹا اور منجلا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وہ بچپن سے ہی اس کو اپنے سے دور رکھتے تھے۔ جب وہ تینوں بیٹے جوان ہوئے، سب سے چھوٹا بیٹا بالکل نیولے کی جیسے دکھتا تھا۔ اب چودھری صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اب وہ اپنے دونوں بیٹوں کو نوکری کی تلاش میں بھیجے گا تاکہ یہ دونوں محنت کر کے خود سے پیسے کما سکیں۔ چودھری صاحب نے صرف دونوں بیٹوں کو کہا، مگر چھوٹا بیٹا یہ سن کر کہنے لگا، بابا جان میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، نوکری کر کے پیسہ کما سکتا ہوں۔ اس پر چودھری صاحب کہنے لگے، بیٹا تم اب بھی چھوٹے ہو، تمہاری قد بہت چھوٹا ہے، اس لیے تم کوئی بھی نوکری نہیں کر سکتے۔ مگر نیولا بیٹا نہیں مانا اور ضد کرنے لگا، اور نوکری کے لیے میں بھی جاؤں گا۔ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کی ضد کہنے پر مان لی۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی چلے جاؤ۔ اب دونوں بڑے بھائی کام کے لیے نکل پڑے۔ ان کے پیچھے ہی نیولا بھائی بھی جانے لگا۔ بڑے بھائی کافی
दिन दूर निकल गए। बहुत तेज धूप लगी हुई थी, गर्मी की वजह से बुरा हाल था। अब दोनों को बहुत प्यास लगी। इधर उधर देखने के बाद जब इन दोनों को कुछ भी नजर ना आया, थोड़ी दूर आगे जाकर इनको एक नारियल का दरख्त नजर आया जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नारियल लगे हुए थे। अब इन दोनों को परेशानी लगी हुई थी कि ये दोनों ही पेड़ पर चढ़ नहीं सकते। नारियल भी बहुत ऊंचा था। इन्होंने बहुत कोशिश की मगर नारियल के पेड़ पर ना चढ़ पाए। बड़ा भाई कहने लगा, हमारा नेवला भाई होता तो वो दरख्त पर चढ़ जाता। इसी दौरान पीछे से आवाज़ आई, भाई मैं आपके पीछे ही हूँ। इन दोनों भाइयों ने अपने नेवले भाई को देख सुख का सांस लिया और देखते ही देखते नेवला पेड़ के ऊपर चढ़ गया। इसने काफ़ी ज़्यादा नारियल नीचे गिराए। फिर इन दोनों ने जी भरकर नारियल का पानी पिया। नेवले भाई का शुक्रिया अदा करने लगे। फिर तीनों भाई आगे की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर जाकर इनको एक नज़र आया। इस दरख्त के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कांटे लगे हुए थे। इन कांटों की वजह से ये दोनों दरख्त पर नहीं चढ़ पा रहे थे। इन दोनों को एक बार फिर से अपने नेवले भाई की ज़रूरत पड़ी। अब वो दोनों इस पर शर्मिंदा हो रहे थे कि हम दोनों को एक नेवले की ज़रूरत पड़ रही है। अब वो दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर इन दोनों ने अपने नेवले भाई से मदद ली और कहने लगे कि भाई हमको भूख लगी है, क्या तुम हमारे लिए कुछ बेर उतार सकते हो। नेवला तो अपने दोनों भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर उसने जल्दी से इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा बेर उतार कर दिए जिससे इन दोनों भाइयों ने पेट भर कर खाया। सुबह से लगातार चलने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी। एक दरख्त के नीचे तीनों सो गए। तीनों भाइयों ने अपने नेवले भाई की मदद तो ली थी मगर फिर भी ये दोनों नेवले भाई को साथ ले जाना नहीं चाहते थे। नेवले की आंख खुली और इसने देखा कि इसके दोनों भाई जा चुके हैं। तो ये देखकर इस नेवले को अपने भाइयों पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो रोने लगा। नेवला आसमान की तरफ देखकर कहने लगा कि ऐ खुदा, मेरे जिस्म को देखकर सब लोग मुझे छोड़ जाते हैं। मैं भी तो तेरा ही बंदा हूँ, कोई भी मुझे पसंद क्यों नहीं करता। फिर भी वो अपने आप को दिलासा देते हुए नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। दूसरे इलाके में चला गया। बड़े भाई को तो किसी की दूसरे बड़े रईस के यहाँ काम मिल गया। नेवला भी अपने लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। किसी ने इसको नौकरी पर ना रखा क्योंकि ये देखने में बहुत छोटा था। फिर नेवला भाई किसी व्यापारी के पास गया और कहने लगा कि आप मुझे नौकरी दे सकते हैं, आप मुझे जो काम कहोगे मैं करूँगा। वो आदमी कहने लगा, अगर तुम काम करने का ख्याल होगा तो नेवला कहने लगा, मैं मुफ्त में आपका काम करूँगा। वो रईस आदमी बहुत चालाक था। इसने सोचा कि मुफ्त में काम करने वाला कोई नहीं होता। फिर भी इसने इस नेवले को अपने बेटे की देखभाल के लिए रख लिया। रईस आदमी ने नेवले को बताया कि मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे अपने बेटे की खिदमत के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो कि इसकी खिदमत कर सके, इसकी देखभाल कर सके, इसको समझा भी सके। दूसरे दिन रईस आदमी ने नेवले को अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा, सब कुछ समझा दिया। अब रईस आदमी बहुत खुश था। रईस आदमी के बेटे ने नेवले को बहुत तंग किया। रईस आदमी का बेटा बहुत शरारती था। इसने नेवले को बहुत धुतकारा, इतना धुतकारा कि नेवला बेचारा थक गया। इसके सर से खून भी निकला। जब रात को रईस वापस आया तो नेवले ने इस रईस को इसके बेटे के करतूत बताए। रईस हाथ पर हाथ मारकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। कहने लगा, मेरा बेटा ऐसा ही है, इसकी खिदमत के लिए बहुत सारे नौकर रखे हैं मगर कोई भी नौकर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। फिर नेवले ने इस लड़के की बहुत खिदमत की, इस लड़के का हर नखरा उठाया। बदले में वो लड़का इसके साथ बहुत ही ख़राब सलूक करता था। रईस आदमी कभी नेवले बेटे के साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं करता था, ना ही इसको ठीक से कुछ खाने को मिलता था। जब शाम को रईस आदमी घर आता तो इसका बेटा अपने बाप को इसकी शिकायत लगाता तो रईस आदमी इस नेवले को बहुत डांटता। नेवला बहुत ज़्यादा दुखी होता, बहुत ज़्यादा रोता। सोचने लगा कि मैं जिसके साथ भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ वो उल्टा मुझे ही खड़ी खोटी सुना देता है। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। फिर उसने सोचा कि भागने से काम नहीं चलेगा, अपना हिसाब बराबर करना ही होगा। नेवले ने देखा कि रईस आदमी बेईमानी, लालच और दो नंबरी के काम करके लोगों को लूटता है। इस तरह करके इस रईस आदमी ने बहुत सारा पैसा जमा कर रखा है। अब इस नेवले आदमी ने एक तरकीब सोची और आहिस्ता आहिस्ता इस नेवले ने लड़के को अपने काबू में कर लिया।
अब इस लड़की के शैतानी नेवले के सामने नहीं चलने वाली थी। अब इस आदमी को सबक सिखाना ही था। रईस आदमी घर से बाहर जाता तो जब इसके बेटे को भूख प्यास लगती तो इस भूख प्यास को नेवले भाई ने अपना हथियार बना लिया। जब वो खाना मांगता तो नेवला भाई कहता कि अगर तुमने खाना खाया तो तुम्हें पानी पीने नहीं दूंगा, अगर पानी पिया तो तुम्हें खाना खाने को नहीं दूंगा, ये सब तुम्हें तभी खाने को दूंगा जब तुम मुझे अपने बाप का जमा किया हुआ पैसे का बताओगे। लड़के ने सोचे समझे बगैर सब कुछ बता दिया क्योंकि उसे तेज़ भूख लगी हुई थी। वहाँ नेवला भाई ने काफ़ी ज़्यादा पैसा निकाला। इस रईस आदमी के घर में एक सूखी सड़ी हुई गधी बंधी हुई थी। नेवले ने सारे पैसे आटे में मिलाकर इस गधी को दिए। नेवला भाई रोज़ ही ऐसे करने लगा। जब भी वो लड़का खाना मांगता तो रईस आदमी कई जगह पैसे छुपा कर रखता। जैसे जैसे उसका बेटा इसको बताता जाता वो सब कुछ जमा करके इस गधी को खिला देता। आहिस्ता आहिस्ता उसने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया, यहाँ तक कि उसको बहुत सारे सोने के सिक्के भी मिले और इस गधी को खिला दिए। जब आहिस्ता आहिस्ता नेवले भाई ने इस रईस आदमी की सारी रकम इस गधी को खिला दी, उसने सोचा कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, पैसा बहुत जमा हो चुका है। इससे पहले इसने अपने भाइयों को इस इलाके में तलाश किया। अपने भाइयों से कहने लगा कि भाई अब हमें घर जाना चाहिए, हमने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया है, अब घर वाले हमें याद करते होंगे। इन दोनों भाइयों को नेवले की पहली बार कोई बात अच्छी लगी थी। वो कहने लगे कि ठीक है, कल सुबह ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इन सब ने अपना अपना सामान बांध दिया। वो दोनों भाई अब अपने मालिक से इजाज़त लेने गए और इधर नेवला भाई भी रईस आदमी के पास आया और जाकर कहने लगा मुझे बहुत दुख है कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगा। रईस आदमी कहने लगा तुम्हारे जाने का मुझे बहुत दुख है, खैर जाने से पहले जो मांगना है मांग लो, जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी मैं उसे पूरा कर दूंगा। नेवला भाई कहने लगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी जो सूखी हुई सड़ी हुई गधी बैठी हुई है वो मुझे दे दो। रईस आदमी ने खुशी खुशी वो गधी नेवले भाई को दे दी क्योंकि वो इसके किसी काम की नहीं थी, उल्टा इस गधी की देखभाल करना पड़ती थी। अब इससे जान छूट गई। नेवला भाई खुशी खुशी वो गधी लेकर अपने भाइयों के साथ चल पड़ा। तीनों भाई घर की तरफ निकल गए। रास्ते में इन तीनों भाइयों ने नेवले का खूब मजाक उड़ाया। कहने लगे इतने दिन नौकरी करने के बाद भी इसने एक गधी ही खरीदी है, वो भी सूखी सड़ी हुई। दोनों भाई हाथ पर हाथ मारकर खूब हंसे, लेकिन नेवला भाई इनकी हरकतों को चुपचाप सहता रहा, अपनी गधी को प्यार से संवारता रहा। रास्ते में दोनों भाइयों को एक बार फिर से भूख लगी। वो अपने भाई नेवले को कहने लगे नेवले दरख्त के ऊपर चढ़ जा और हमको बेर तोड़कर दो ताकि हम लोग अपना पेट भर सके। नेवले भाई ने कहा हाँ। मैं सर हिलाया और दरख्त के ऊपर चढ़ गया। नेवला भाई अपने भाइयों को समझ चुका था और इसके साथ कैसा सलूक करते हैं, तो इस दिन मोटे और पके हुए बेर खुद खाए। ऐसे ही रास्ते में इस तरह के कई दरख्त मिले तो नेवला ऊपर चढ़ जाता, अपना पेट फुल कर लेता और अपनी गधी को भी खूब खिलाता। अब गधी भी नेवले के साथ बहुत खुश थी। अब नेवला बड़े मज़े के साथ गधी के ऊपर बैठकर चढ़ रहा था। दोनों भाई बड़े पैदल चल रहे थे, लेकिन नेवला भाई इनके आगे आगे अपनी गधी के ऊपर था। दोनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया सबसे पहले नेवले के घर चलेंगे, देखें तो सही कि आखिर इसने क्या कमाया है। अब ये तीनों अपने गांव पहुंच चुके थे। जब अपने घर आए तो इनके घर वाले और गांव वाले लोग इनको देखने के लिए जमा थे क्योंकि इन तीनों की माँ अलग अलग थी, इसलिए इसके बाप ने इन तीनों के लिए घर भी अलग अलग बना कर दिए थे ताकि कोई भी एक दूसरे से लड़ाई ना कर सके। पहले तीनों भाई अपने अपने घर में दाखिल हुए। अपने घर दाखिल हुआ तो गांव के लोग हंसने लगे, कहने लगे देखो देखो नेवला भाई क्या लाया है। नेवले ने इन सबको नज़रअंदाज करके घड़ी को अपने सहन में जाकर एक जगह पर बांध दिया और जाकर अपनी माँ से कहने लगा माँ जल्दी से घर को साफ करो और कुछ हाफ़िज़े कुरान बच्चे घर की तिलावत के लिए अपने घर में बुलाओ, एक डंडा भी लेकर आना। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे, लेकिन नेवला बार बार एक ही बात कर रहा था। इसकी माँ कहने लगी डंडा कुरान की तिलावत बच्चे क्या है ये सब, बेटा तू क्या कह रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से कहने लगा माँ घर को साफ करो, कुरान की तिलावत के लिए हाफ़िज़े कुरान बच्चे बुलाओ
और एक डंडा भी लेकर आना। मोहल्ले के लोग नेवले की माँ को कहने लगे, एक बार अपने बेटे की बात मान कर तो देखो ये करना क्या चाहता है। नेवले की हुक्म से घर को अच्छी तरह साफ किया गया। छाप से कुरान बच्चों को कुरान की तिलावत के लिए बुलाया गया और एक मजबूत डंडा भी लाया गया। अब बच्चों ने कुरान की तिलावत शुरू की तो बच्चों ने ऐसा ही किया। नेवला भाई ने गधे को 2 डंडे मारे तो गधी देखते ही देखते सोने के काफ़ी सिक्के निकालना शुरू कर दिए। ये देखकर तो लोग हैरान हो गए। फिर इसके बाद अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दिया। जब ये सोने के सिक्के निकलने बंद हो गए तो नेवला कहने लगा कि बच्चों मज़ीद कुरान की तिलावत जारी रखो। इस बार नेवले ने गधी को 4 डंडे मारे तो गधी ने और तेज़ रफ्तारी के साथ बहुत पैसा और सोना निकालना शुरू कर दिया। अब सब लोग सूखी हुई गधी को नेक गधी समझने लगे। अब लोगों ने इन दोनों भाइयों से पूछा कि आप लोग क्या कमा कर लाए हैं। इन दोनों भाइयों ने अपनी कमाई की हुई रकम नेवले भाई के सामने इनकी रकम कुछ भी नहीं थी। पैसे निकाले गधी को देखकर इन दोनों भाइयों की दिल में लालच आ गई। इन्होंने नेवले भाई से ये गधी खरीदने का इरादा किया। नेवले भाई ने कहा कि अपनी नेक गधी को तुम लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, इसके बदले आपकी कमाई की हुई सारी रकम लूँगा। आप दोनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया, कहने लगे पैसे तो हमें फिर भी मिल जाएंगे जब हमारे पास वो नेक गधी आएगी। इन्होंने अपने सारे कमाए हुए पैसे अपने छोटे भाई नेवले को दे दिए और इसे वो नेक गधी खरीद ली। वो दोनों भाई इस गधी को लेकर अपने घर गए और ठीक इसी तरह इन्होंने बच्चों को कुरान पाक की तिलावत के लिए बुलाया और एक डंडे के साथ इस गधी को मारना शुरू कर दिया। इस गधी की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और दोनों भाइयों ने एक डंडे के साथ इस गधी को डंडे लगाए, मगर इस गधी ने सिर्फ एक ही सोने का सिक्का निकाला। ये देखकर इन्होंने गधी को और मारना शुरू किया और मज़ीद कुरान की तिलावत करवाने लगे, मगर इनको एक सिक्के के अलावा और कुछ भी हासिल ना हुआ। वो बेचारी गधी मार खा खा कर वहीं सहन में गिर गई और ये दोनों भाई अपना सर पकड़कर बैठ गए। अब वो दोनों भाई इस गधी को लेकर अपने नेवले भाई के पास गए और जाकर कहने लगे, ये रही तुम्हारी गधी, तुम ही संभालो इसको, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो दोनों इस गधी को छोड़कर वापस अपने घर चले गए। इस गधी की खूब खातर खिदमत करता था। अब ये गधी इसके पास रहती थी। अब जब नेवला ने जाना होता तो वो इस गधी के ऊपर बैठकर ही जाता। गधी को खूब अच्छे से चारा डालता, फिर खिलाता, इसके बाद इसकी खिदमत भी करता था। अब खूब मोटी हो चुकी थी। वो नेवला अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। लोग अब भी इसका मजाक उड़ाते, लेकिन ये वाला भाई अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता और लोगों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगा। नेवले के दोनों भाई बहुत पैसा कमाने लगे और बाप का कहना था कि दोनों भाइयों की शादी कर देनी चाहिए। जब अच्छे रिश्ते आए तो इन दोनों भाइयों की शादी होगी, मगर अभी भी नेवला कुंवारा था और इसके भाई इसका मजाक उड़ाते, कहते कि नेवला तो गधी से ही शादी करेगा। चौधरी साहब जो कि नेवले का बाप था, इसको नेवले की माँ को अपने बेटे की शादी की फिक्र होने लगी, क्योंकि इसकी उम्र भी शादी की हो गई थी। दूसरी तरफ नेवले की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और बीमार रहने लगी थी। इसके हाथ पाँव ठीक से काम नहीं करते थे, मगर फिर भी वो घर का सारा काम करती। कुछ दिन बाद नेवले की माँ को बुखार हो गया और वो काफ़ी बीमार होगी। घर का सारा काम और खाने पकाने का सारा काम इस नेवले के सर पर आ चुका था। इसको खाना तो बनाना नहीं आता था, मगर फिर भी जैसा भी वो बनाता इसको खाना पड़ता। बड़े भाई इनकी माँ से नेवले को कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई हमारी मदद करेगा। जब नेवले की माँ मज़ीद बीमार हुई तो नेवले ने एक रात खाना बनाया तो वो जलकर सारा ख़त्म हो चुका था। इस रात नेवले और इसकी माँ को भूखा ही सोना पड़ा। जब आधी रात हुई तो नेवले भाई का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नेवला उठा, उसने देखा कि शायद घर में कोई घुस आया है। तो जब इसने घर देखा तो कोई भी नहीं मिला। जब सुबह को उठा तो इसने देखा कि पूरा घर साफ़ सुथरा है और कचरा भी नहीं है और खाने बने हुए हैं। ये देखकर नेवला बहुत ज़्यादा खुश हुआ। सबसे पहले इसने खाना अपनी माँ को खिलाया और ख़ुद भी खाया। इसने सोचा कि पता नहीं ये सब कुछ किसने किया है, चलो जिसने भी किया है अच्छा ही किया है।
दूसरे दिन फिर ऐसा ही देखने को मिला। घर भी साफ, खाना भी पका हुआ था, कोई इनके कपड़े भी धोकर चला गया था। नेवला भाई को अजीब सा लगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। 3-4 दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर नेवले ने कहा कि मैं ये सब जानकर रहूँगा, आखिर ये सब कौन कर रहा है। उसने सोने का किया। जब आधी रात को आवाज़ आई, वो जल्दी से खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। इसने देखा कि गधी की झोंपड़ी का दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ है और गधी बाहर आई और बरामदे में आकर खड़ी होगी। इसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता गधी अपना रूप बदलने लगी और वो एक खूबसूरत लड़की में तब्दील होगी। वो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि इसके रूप से चारों तरफ रोशनी फैल रही थी। ये सब कुछ नेवला भाई अपनी खिड़की से देख रहा था। इसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो खूबसूरत लड़की अपने मुंह में कुछ पड़ने लगी। झाड़ू की तरफ देखा तो झाड़ू खुद ब खुद सफाई करने लगा। देखते ही देखते सारा घर साफ सुथरा हो गया। नेवला भाई का नींद की वजह से सर चकराने लगा और आंखें बंद होने लगी। वो ज़्यादा देर तक जाग ना पाया और सो गया। सुबह को जब नेवला भाई उठा, उसने देखा कि वो कमरे के कोने में पड़ा हुआ है। वो बाहर झोंपड़ी के पास गया। सूरज काफ़ी ज़्यादा सर पर था। उसने झोंपड़ी के अंदर झांका तो देखा गधी के गले में रस्सी बंधी हुई है और वो चुपचाप खड़ी है। ये देखा नेवला भाई बड़ा हैरान हो गया। वो गधी से पूछने लगा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। काफ़ी देर तक नेवला इस गधी से सवाल करता रहा, मगर वो गधी खामोशी से नेवले भाई को देखती जा रही थी। वो थक हार कर कमरे में आ गया और किसी सोच में डूब गया। कहने लगा कि आज रात में इस गधी का राज जानकर रहूँगा। वो अपने गांव में दिन भर घूमने चला गया और शाम को इसने खाने की दवाई खाई और चारपाई पर लेट गया। वो लेटे लेटे इस गधी के बारे में सोच रहा था। जब आधी रात हुई तो कल की तरह झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला। वो झोंपड़ी से बाहर आई तो इसके चारों तरफ से सुनहरी रोशनी फैल रही थी। वो देखते ही देखते एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई। जब रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई तो नेवले ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो रोशनी इसकी आंखों से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। जब उसने आंखें खोली तो वो खूबसूरत लड़की बरामदे में खड़ी थी और मुंह में कुछ पढ़ रही थी। अभी भी वो मुंह में कुछ पढ़ ही रही थी कि नेवले ने झट से कमरे का दरवाज़ा खोला और जाकर इस खूबसूरत लड़की के सामने खड़ा हो गया। वो खूबसूरत लड़की नेवले को देख देख कर भागने ही वाली थी कि नेवले ने सख्त लहजे में बोला कि ए लड़की रुक जाओ। वो लड़की रुक गई। उस लड़की से कहने लगा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। वो लड़की कहने लगी कि मैं मुसलमान और एक हफ्ते कुरान लड़की हूँ, अल्लाह ताला की बहुत इबादत करती हूँ और इस वक्त मेरा तो हजत पढ़ने का वक्त होता है। नेवला कहने लगा कि मुझे ये बताओ कि तुम लड़की से गधी कैसे बन गई हो। वो लड़की कहने लगी कि जिस बस्ती में रहती थी, इस बस्ती के लोग ज़्यादातर हिंदू थे, मुसलमान इस बस्ती में बहुत कम थे। इस बस्ती में हिंदुओं ने एक बहुत बड़ा मंदिर बना रखा था। इस मंदिर के अंदर चारों तरफ स्पीकर थे। वो सारा दिन इसमें संगीत बोलते थे। इस बस्ती में अल्लाह की कुदरत ये थी कि हमारी एक छोटी सी मजलिस थी। जब भी इस मस्जिद में अजान होती तो पूरी बस्ती में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठती थी। मैं अपनी पूरी बस्ती में अपने दीन को फैलाना चाहती थी। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आते थे। भी दिया करती थी। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग जो कि बहुत ही ज़ईफ़ आदमी थे, वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते और अल्लाह पाक ने इनके हाथ में शफा भी रखी थी कि वो बीमारी का इलाज भी करते थे। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने इस बस्ती में बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया। इस बस्ती के काफ़ी ज़्यादा लोग मुसलमान हो चुके थे। जिस हिंदू को अल्लाह वाले बुजुर्ग के हाथों शफा मिलती, वो अपनी बस्ती में आकर मुझसे मुसलमान हो जाता और कुरान की तालीम हासिल करने लगता। जो इस मंदिर का पंडित था वो ये देखकर मुझसे हसद करने लगा और जलने लगा और मुझ पर अतराने लगा और कहने लगा मैं जादू करूँगा इस पर। मैंने इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ये बात बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम अल्लाह की याद से कभी भी गाफिल मत होना। इस पंडित के सामने बहुत सारी शैतानी ताकतें हैं और इसका इलाज भी तुम खुद ही कर सकती हो। बस तुम अल्लाह का जिक्र करती रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर पंडित के एक दिन ख़ानदान की कुछ औरतें कुरान की तालीम हासिल करने के लिए मेरे पास आई। मैंने इन सबको कलमा पढ़ाया, फिर कुरान की तिलावत शुरू करवा दी।
इस बात को लेकर पंडित को मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो आग भगोला हो गया। फिर इसने मुझ पर एक ऐसा अमल किया जिसके साथ ही मैं गधी में तब्दील हो गई। जब मेरा तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है, इस वक्त मैं अपनी असली हालत में आ जाती हूँ। फिर मुझे अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बताया कि तुम हमेशा अपनी असल हालत में इस वक्त आओगी जब तुम्हारा निकाह होगा, और तुम अपने शौहर के साथ इस पंडित का एक बहुत बड़ा सरदार है जिसका नाम साधु बाबा है। वो शैतानी काम करता है, काफ़ी ज़्यादा शैतानी जिन्नात वाली ताकतें हैं इसके पास। इन ताकतों की वजह से वो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रहा है। तुम हाफ़िज़ कुरान लड़की हो, तुम्हारे पास कुरान की ताकत है, तुम इस ताकत से साधु बाबा का खात्मा कर सकती हो, तो तुम हमेशा के लिए असली हालत में आ जाओगी। नेवला इस लड़की की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश होकर कुछ सोचने लगा। फिर कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ निकाह कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ इस साधु बाबा का खात्मा करने के लिए तैयार हूँ। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ। हाफ़िज़ कुरान लड़की कहने लगी, खूबसूरत नहीं सीरत होती है, अच्छे अखलाक से होती है, यही हमारा दीन भी सिखाता है। नेवले ने इस लड़की से कहा कि सुबह हमारा सबके सामने निकाह होगा, आधी रात को हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर यहाँ से साधु बाबा के पास निकल जाएंगे। जब नेवले ने अपने अब्बा से इस गद्दी से निकाह की बात की तो इसके भाइयों और इसकी माँ ने इसका बहुत मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा, जाहिर सी बात है इससे निकाह इस गद्दी के अलावा और कौन करेगा। फिर इसके माँ बाप ने इसको बहुत ज़्यादा समझाया, मगर नेवले की ज़िद के आगे हार मान ली और इस गद्दी के साथ इसका निकाह करवा दिया। जब आधी रात का वक्त हुआ तो वो दोनों तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगे। नेवले ने एक कपड़े का थैला अपने बाजू पर लटकाया और इसके अंदर एक छोटी सी सुर्ख मिर्च की रख ली। इसके बाद अल्लाह का जिक्र करते हुए वहाँ से बढ़े। और में नेवले से लड़की कहने लगी, हमारे पास कुरान की तिलावत है और इस तिलावत और ताकत के लिए दिमाग की भी साथ ज़रूरत है और इस दिमाग के साथ हमें इसको हराना होगा। नेवले ने अपनी बीवी को अपने प्लान के बारे में बताया। वो बातें करते करते इस बस्ती में जा पहुँचे। इस बस्ती में एक गहरा जंगल था और जंगल में एक गुफा थी। इस गुफा के अंदर इर्द गिर्द कई जंगली जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। वहाँ पर अजीबो किस्म की बदबू आ रही थी। वो दोनों मुंह में कुरान की तिलावत करते हुए गुफा के अंदर चले गए। गुफा में बहुत अंधेरा था और एक जगह हल्की सी आग जल रही थी। शायद वो आग रोशनी के लिए जलाई गई थी। पहले तो वो दोनों घबरा गए, फिर जल्दी ही इन दोनों ने अपने आप पर काबू पाया। दोनों ने अंदर का देखा और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर थोड़ी सी रेत वहाँ से उठा ली। नेवले ने अपने थैले से एक अंडा निकाला। वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो इसको रास्ते में मिला था, इसने वो अंडा अपने थैले में छुपा लिया था। साधु बाबा इन दोनों को देखकर खड़ा हो गया और खौफनाक नज़रों से इनको देखने लगा। नेवले ने साधु बाबा के सामने एक हाथ से पत्थर उठाया और अपने दोनों हाथों से इस पत्थर को मसलने लगा। जिस हाथ में अंडा था वो अंडा टूटने की थोड़ी सी आवाज़ आई। साधु बाबा तो ये देखकर हैरान और थोड़ा सा घबरा भी गया। इसको लगा कि इसने पत्थर को मसल दिया और नीचे फेंक दिया, मगर इस साधु बाबा पर नेवले की ताकत का ज़रा असर ना हुआ और साधु जानता था कि मेरी गुफा में आए तक किसी को आने की हिम्मत नहीं, इसलिए वो इन दोनों को देखकर आग भगोला हो गया। वो इन दोनों की तरफ हमले के लिए आगे बढ़ा। वो जल्दी से पीछे हट गया। जब इसको लगा कि मेरा वार इन दोनों पर काम नहीं किया तो इसने जल्दी से एक कुल्हाड़ी निकाली और इन दोनों को दे मारी, मगर इस पर भी वो नाकाम रहा। इस लड़की को इसने पकड़ लिया और नेवला जल्दी से साधु बाबा के सर पर चढ़ गया। थैले से चाकू निकालकर इसके सर के ऊपर वार किया। जब वो दुरुस्त से ना चलने लगा तो इसने लड़की को जोर दिया और नेवला भी इसके सर से नीचे गिर गया। नेवले को थोड़ी सी चोट आई, मगर फिर भी जल्दी से खड़ा हो गया। अब साधु बाबा का गुस्सा मजीद भड़क चुका था। अब साधु बाबा को मजीद गुस्सा आया तो वो गुस्से से नेवले को अपने पाँव उठा कर उसको कुचलने ही वाला था। जैसे ही उसने अपने पाँव को उसकी तरफ बढ़ाया, नेवले ने जल्दी से वहाँ से चाकू उसके पाँव पर लगा दिया। जब साधु बाबा ने अपना पाँव ज़मीन पर रखा तो वो चाकू इसके आर पार हो गया। वो ज़मीन पर गिर गया। नेवले भाई को इस बात का मौका मिल गया।
नेवले भाई ने जल्दी से अपने थैले से सुर्ख मिर्चें निकाली और इसकी आंख में डाल दी और बाकी की मिर्चें भी इसके ऊपर फेंक दी। साधु बाबा मिर्चों की जलन और तड़प अपनी आंखों को लेकर इधर उधर भटकने लगा। अब इसमें लड़ने की ताकत नहीं थी। नेवला भाई जल्दी से साधु बाबा के पाँव के ऊपर चढ़ गया। अब साधु बाबा को मिर्चों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसने इधर हाथ पाँव मारे और इसके हाथ में एक कुल्हाड़ी लगी। इसने कुल्हाड़ी जैसे ही इसके ऊपर मारी, नेवला इसके पाँव से पीछे हट गया और वो कुल्हाड़ी इसने खुद ही अपने ऊपर मार ली। अब वो दोनों ही पाँव लिए चीखे मारता हुआ वहीं पर लेट गया, क्योंकि अब लड़ने की ताकत इसमें नहीं थी। नेवला भाई और वो खूबसूरत लड़की दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए। फिर एकदम से नेवले को साधु बाबा ने पीछे से पकड़ लिया। जब इस लड़की ने देखा कि साधु तो बस पाँव से जख्मी है, ये इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है, इस लड़की को इस साधु पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इस लड़की ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पूरी ताकत से इस लड़की ने इस कुल्हाड़ी को इसकी गर्दन पर दे मारा। जैसे ही उसने इसकी गर्दन के ऊपर वार किया, साधु बाबा नेवले को छोड़कर ज़मीन पर गिर गया और साधु बाबा चीखता रहा, पीछे को आग के अंदर जाकर गिर गया और वहाँ पर मर गया। जब नेवले को होश आया तो इसने देखा कि वो चट्टान पर लेटा हुआ है और सामने एक खूबसूरत लड़की जो कि इसकी बीवी थी वो खड़ी हुई थी। नेवले को किसी जगह पर कोई भी जख्म नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था। इसने उठकर सूरज की तरफ देखा और फिर अपनी खूबसूरत बीवी की तरफ देखकर कहने लगा, देखो मुकम्मल दिन है और तुम बिल्कुल ठीक हो और अपनी असल हालत में हो, इसका मतलब हम दोनों कामयाब हो गए। इसने जल्दी से नेवले का हाथ पकड़ा, इसको उठाकर सीधा अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास ले गई। जाते ही इसको कहने लगी, ए अल्लाह वाले बुजुर्ग, मेरा शौहर जैसा भी है मुझे कबूल है, मगर जब ये लोगों के सामने जलील होता है, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, इसको हकीर समझते हैं, तो ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह वाले बुजुर्ग उठे और वहाँ एक फल का दरख्त लगा हुआ था, वही फल इन्होंने इस नेवले को खिलाया और वो एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में बदल गया। अब नेवला जो कि अपनी असली हालत में वापस आ चुका था और बहुत ही खूबसूरत लड़का बन चुका था। इसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और सीधा अपने घर में आ गया। इसके माँ बाप ने जब इसको देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुए और इसकी माँ तो इसे देखकर सीने से लगाने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। और जब इस बात को इसके भाइयों को पता चला और इसके भाई देखकर हैरान ही रह गए और इससे माफ़ी मांगने लगे और फिर कभी भी इन्होंने अपने भाई को जलील नहीं किया। मोहतरम नाज़रीन, क्या पता जब इंसान को हम जलील कर रहे हो, चाहे वो औरत हो या कोई मर्द हो, वो अल्लाह ताला के सामने और अल्लाह ताला के नज़दीक कितना है इसे हम नहीं जानते। खुद को बहुत बेहतर समझ रहे होते हैं और दूसरों को हकीर जान रहे होते हैं और दूसरों की तज़लील कर रहे होते हैं और जगह जगह पर उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, मगर हमें अल्लाह से डर नहीं लगता। हम ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया एक मच्छर के जितनी भी नहीं है, इसलिए हमें किसी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। क्या पता कि जिन पर हम हंसते हैं वो अल्लाह ताला के कितने नज़दीक और कितने बेहतर हो। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को अपने अजीज़ों कारब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है कि इस बात का लोगों पर असर हो जाए जो ये चीज़ कर रहे हो और ये वीडियो आप सबके लिए सदका जारिया बन जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।